Okay, from this lecture onwards we will just start. तो चलो हम आगे आते हैं. Okay, so if you talk about the negative slope, look at here, look at with these examples, we are talking about the negative slope. If we talk about the negative slope, so if you talk about the negative slope, what is going to happen? Negative slope में क्या होने वाला है बच्चा? That theta is greater than 0. When you talk about the negative slope, this theta is greater than 90 degree. Why this theta is greater than 90 degree? Because you are going to measure with respect to this positive x-axis. So theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree, obviously आप बोलोगे कि ये the partial part is passing through this. आप just go through this direction. This is the third quadrant. This is the second quadrant, and this is the first quadrant. The straight line passes through the first quadrant, second quadrant, and the fourth quadrant. In the second quadrant and fourth quadrant, in both the quadrant, this tan theta is negative. ये जो tan theta होता है इन दोनों quadrant में negative होता है. So that's why you will say that m is negative. So when you say that m is negative, so actually m is negative, it means that we are talking about the negative slope. So that's why this is m and this is tan theta. So you are talking about tan theta is negative, that's why it passes through the second quadrant and the fourth quadrant. That's all about. Okay, तो आपको ये चीज समझ में आ गया बच्चा लोग? ये समझा आपको? So now we can process for next. So आप सबको समझा ये? ओए, okay. So we proceed for next now. थोड़ा आगे चलते हैं इसमें. So you can find that when theta is greater than 90 degree, the slope is tan theta in the second quadrant and the first quadrant. So like this. So now we are going to compare the slope. अब हम इसमें ना compare करने वाले हैं. Now look at here. Now अब हमने इसमें compare करने वाले हैं. जैसे पिछले example में हमने किया था, we are going to compare it. So when we are going to compare it, what we are going to do? Now let's go and compare it. So you have the three, this is the question for you, okay? Okay kids, this is the question for you. We are going to compare the slopes. We are going to compare the slopes. So the first straight line is y is equal to minus x, right? And the slope m1 is minus 1. Look at here. The second slope is y is equal to minus 2x. And you can say that this m2 is minus 2. Here you can say that this y is equal to minus 1 by 2x. You can say that this m3 is minus 1 by 2. आपके पास तीन अलग अलग स्लोप है. ओके, तो आगे आपको तीन अलग अलग स्लोप. अब आपसे ना आपको इससे तीन स्ट्रेट लाइन बनानी है. देखते हैं जरा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने वाला है. द रीजन बिहाइंड इट, आप इसकी वैल्यूज को नहीं जानते हो इसलिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1. आप देखोगे जरा, ये सबसे पहले मैं इसके लिए बात करता हूँ. इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? You can say that again, mod of m2 is greater than, mod यहाँ पे यूज किया क्योंकि मैं इसे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, is greater than mod of m1 is greater than mod of m3. Okay chance, now look at here. So सबसे पहले हम ये जो सबसे पहले जो टर्म है y is equal to minus x को मैं ड्रॉ करता हूँ. When you are going to draw y is equal to minus x, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ. वैल्यू निकालना ट्रिगो में नहीं सीखा है आपने, इसलिए आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है. Now look at here. ये this is the y is equal to minus x, and now this angle is theta 1. This angle is theta 1. Okay. So now we come for next. अब दूसरा लेके चलते हैं जरा. Now look at here. M2 is minus 2. You don't know the value of tan minus 2. ठीक है. तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, when you plot the graph by putting input and output, you will find it. अभी मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ because you don't know the what is the value of minus 2 and how you can find that tan theta is equal to minus 2. So I just want to recall some points when we have computed the value or when we have draw a graph for a straight line by computing the value of input and output. So you can find this. So this is the value of, this is theta 2. This is theta 2. And now if you talk about this m3 is a minus 1 by 2. तो अगर आप इसके बारे में अगर आप बात करते हैं
तो जब आप इसकी वैल्यू कंप्यूट इनपुट एंड आउटपुट से करोगे तो ये ऐसा आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देयर इज सम बेसिक लॉ बिहाइंड दैट, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ -1/2 tan -1/2 दैट -2 एंड -1। आपको बाद में ये चीजें बहुत इजी लगती है, लेकिन अभी के लिए बोलो, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट, यू कैन फाइंड द ग्राफ लाइक दिस, राइट, एंड दिस इज θ3। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखोगे, सो नाउ अगर मैं इन सबको अलग अलग तरीके से कर देता हूँ, जरा आप सबको देखेंगे, इसके लिए ये वाला जो पार्ट है, दिस बिकम्स द θ1, सो दिस इज y इज इक्वल टू x, व्हाइट कलर से मैंने लिखा है इसको, और रेड कलर से दिस इज द y इज इक्वल टू 2x। नाउ लुक एट दिस, दिस इज θ2, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस इज θ3। यहाँ पर आप देखोगे, ओके, सो आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ में, इसके अकॉर्डिंग आप कैसे लिखोगे, सबसे ज्यादा बड़ा एंगल कौन सा है, θ3। इसमें देखो, ये जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया, θ3 इज ग्रेटर देन θ1 एंड इट इज ग्रेटर देन θ2। अगर आप इसकी मॉड वैल्यू देखोगे तो θ3 की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी, मॉड वैल्यू ऑफ m3 जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसके पीछे मैं लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट tan -1 एंड tan -2, एंड वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, दैट्स व्हाई सिंपली आप इसको समझ जाओ। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट, यू विल फाइंड दिस ग्राफ हियर। यहाँ पे जो सबसे छोटा, लास्ट में जो सबसे बड़ा स्लोप था उसका एंगल ज्यादा था, यहाँ पे जो सबसे छोटा स्लोप है उसका एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में, थोड़ी सी दिमाग में रखनी है अभी के लिए। सर नो सर प्लीज, ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चा लोग। मैं यह बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको स्लोप क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है m1 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है -1, m1 क्या मिल रहा है आपको, -1। सो दिस इज फॉर द tan θ1। और सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका, दिस इज फॉर द tan θ2, और ये जो मिल रहा है दिस इज द tan θ3। देखो अपन लोग को थोड़ी पता है कि tan θ2 में कितनी वैल्यू जो होती है, -2 होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2 सच दैट जो tan θ2 की वैल्यू जो होगी वो -2 होगी। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, एंड द ऑप्शन इज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट। वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम इनपुट और आउटपुट से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी कैन फाइंड द ग्राफ लाइक दिस। ये जो ग्राफ, अगर आप इनपुट एंड आउटपुट प्लॉट करके ग्राफ फाइंड करोगे तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, आपको ये वाला ग्राफ आएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राफ, अब बात आती है, अब मैं ड्रॉ करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राफ यू विल फाइंड कि ये जो y इक्वल टू mx जो है, मैं थोड़ा सा इसको पूरा एकदम कंप्लीटली फ्रेश करता हूँ मैं, और फिर से समझाता हूँ मैं। इसको समझाने का ये तरीका मैंने क्यों अपनाया वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। आप देख भाई, ये वाली बात देख, ये वाला y इक्वल टू -x, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपको m1 आ रहा है, सो दिस बिकम्स -1, and actually this is the value of tan θ1. I don't know about this graph, I don't know about the -1 because मुझे नहीं पता tan की कितनी वैल्यू -1 होती है, some of you may know, but so मुझे कैसे ड्रॉ करना है, how to draw this graph? I have only one option according to the input and output। आपको याद होगा ये जो मैं प्लॉट कर रहा था। So when you draw this graph, you will find this graph is, so you are लगता है आपने हमारे जो ये क्या बोलते हैं, ये मैम आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूजर नेम से नेम तो अपीयर होगा ही, साथ ही साथ नाउ डिसेबल्ड। सो आई विल जस्ट चेक इट आउट हु हैव रिटन दिस एंड देन आफ्टर आई विल कम टू यू। सो एनीवन हु हैव रिटन इट, it costs something. Anyone who have written this, it costs something for you. Note it down. Once I will know it, it will cost something for you. It doesn't mean that who you are and from where you belongs. We are not supposed to be here like a ordinary guys. जिसको कोई काम धंधा नहीं मिला तो पढ़ाना चालू कर दिया। We all are professionals. तुम लोग क्या टीचर को ये समझ रखा है क्या, या मुंबई में टीचर के लिए यही चीज आता है, इनको कुछ भी नहीं आया तो चलो इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। Anyone who have written this, you have to pay the cost for that.
चलो यार स्टार्ट करते हैं. So m1 is equal to -1. This is the tan theta 1. So like this we are going to draw the graph. चल भाई ये देख ले. देखिए यार जब आप इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे ना इनपुट और आउटपुट को लेकर, तो आपका ग्राफ ये आएगा. देखना बड़ी मासूमियत के साथ देखना इसको. ये वाला ग्राफ आएगा. इज इट करेक्ट? और जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसके लिए जो एंगल आएगा दिस इज थीटा 1. मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं बता सकता. मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको वो वैल्यू आती नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ. बहुत सिंपल है. देखिए ये वाला दूसरा एग्जांपल ले लिया. इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, इसका ग्राफ भी इनपुट आउटपुट करके ड्रॉ करा हमने. जब इनपुट आउटपुट ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसी आएगी. नाउ लाइक दिस. ओके, कैसे ड्रॉ हुआ? ड्रॉ करना सीख चुके हैं इसलिए ड्रॉ होगा. सो नाउ दिस इज थीटा 2. एंड इफ यू टॉक अबाउट, अगर मैं कुछ और बात करूं, ये वाला पार्ट -1/2. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये भी ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हो. यस, दिस इज थीटा 3. जी क्लियर? आ गया ना हमने बस. बच्चा लोग ये आ गया m2 और ये किसके लिए आपका m3. इधर you clearly find that after drawing this graph, आपको क्लियरली ये दिख रहा है. अच्छा, आपको मॉड वैल्यू ये तो आता ही होगा. आप में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है नेगेटिव के हिसाब से देखा जाए तो? मैं मॉड की बात नहीं कर रहा हूँ. आप ऐसे बोल सकते हो m3 जो है वो सबसे बड़ा है. अगर मॉड वैल्यू नहीं लिखा जाए किससे? आपको m2 से. और ये क्या लिखा जाए? एंड m1 से. सबसे m1 जो है वो सबसे, ये जो उल्टा लिख देंगे, this is m1 and this is m2. प्लीज आपको ये जो फ्रीडम दी जाती है आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें. सो दिस इज m3, दिस इज m1 एंड दिस इज m2. m3 जो है वो सबसे बड़ा है बिकॉज इट्स -1. अच्छा एक बात बताओ, -2 एंड -1 में which is greater? In -1 and -2 which is greater? -1 is greater obviously. So you can say that this is -1/2. We will say that m2 is greater, sorry m3 is greater, क्योंकि ये m3 है. उसके बाद जो है -1 आ गया एंड इसलिए आप इसको बोलोगे यहाँ पे थीटा 3 is greater than थीटा 1 is greater than थीटा 2. Let me, so this is the value. Just note it down please. इसको नोट डाउन कर लेंगे. इसमें सबसे ज्यादा बड़ा एंगल थीटा 3 होगा एंड देन आफ्टर थीटा 1 एंड दिस देन आफ्टर थीटा 2. सो नोट इट डाउन प्लीज, देन वी कम फॉर नेक्स्ट. नोट इट डाउन प्लीज. आप नोट डाउन कर चुके हैं इसे? मैं आई रेज इट? आप नोट डाउन कर चुके हैं? इसके बाद वाली चीजें बहुत सिंपल है. ये तो थोड़ा उनको लग रहा होगा, इसके बाद वाली चीजें तो हद से ज्यादा सिंपल है. मैं रेज इट गाइस? मैं रेज इट? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. आगे के जो टर्म्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएंगे. नाउ लुक एट हियर. जीरो स्लोप हम पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जीरो स्लोप. So when we are going to draw a line, the line is parallel to the x-axis. Accordingly, when the lines are parallel to x-axis, you will find that theta is equal to 0. And if theta is equal to 0, tan 0 की value 0 होती है. That's why the slope is. अपने मिले ये two lines are parallel. Parallel means that parallel to x-axis. Then you can say that two lines are parallel. The angle is 0. That's why tan 0 and tan 0 is 0. We have already studied about that. We are not going to invest our time in this. If you talk about infinite slope, so if you talk about the infinite slope, this angle parallel is 90 degree parallel to y-axis, or you can say that a 90 degree with respect to the x-axis. We have already defined that. So tan theta is, so slope is tan 90. You know that tan 90 is undefined.
So that's why it is the undefined slope. We have also realized that how the practical application of this equation are going to be implemented in physics. हमने ये भी देखा है कि how the practical application of these concepts are going to be implemented in physics. So accordingly that हमने we have defined there are accordingly this we have defined there are 4 type of slope: positive, negative, zero and infinite. तो ये इन सभी के बारे में पढ़ा. Let's do some numericals. Okay, so the first question is, find the slope of a line and comment on the nature of the slope. Is it possible for you to find out? Is it possible for you to find out? Just find it out. So what is the question? The question is, find the slope of a line and the nature of a slope. These are 2 things that you have to come to know. So when you talk about you have to find out the slope of the line, what you have to do? आप सबसे पहले क्या करोगे? You have to just define this triangle. You have to just define this triangle. Yes. अब ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्व करा है. So let me check it out. जब तक कुछ बच्चे कर रहे हैं. आदित्य, तन्मय, 1/4. everyone has solved it. Are you great guys? चलो बढ़िया. तुम सबने सॉल्व कर दिया. Positive है. Appreciated. It's इधर से इधर तक this becomes 8 and this is 4. Now when we are going to find out the tan theta is very simple. This becomes 4/8. So if we talk about this 4/8, so this becomes what? It's 4/8. No, it's not 4/8. It's so this becomes 4/2. This becomes 4/2. Sorry, 2/4. Give me 1 minute. This technical glitches and concentration. Okay, now. So this is 2. This is 2. So this becomes it is the 2/8. So this 2/8 is 1/4. There you will find that 1/4 is positive. So 1/4 is positive. It means that tan theta is positive. It means that m is positive. So if n is positive, we'll say that theta is less than 90 degree. Exactly. आप यहाँ पे देखो ना, theta is less than 90 degree. अच्छा, आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो. Suppose अगर आपने इसको पीछे की ओर अगर आप इसको स्केच करते हो like this, when you draw, अगर आप इसको स्केच करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, सो आई होप सो यू विल गेट इट. आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें एंड वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. डोंट वरी, इसके बाद में ये जो सारे न्यूमेरिकल जो आपको इजी लग रहा है ना, इस पे मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, आप टेंशन मत लो. फिर I will define that how the physics are going to be defined on the basis of this simple equations, ताकि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन समझने आसान पड़े. Okay, so you got the solution and all. Okay, so here you can find, so the, before going to this equation, so let's do something with the example and then we come. Okay, we have already defined this graph, so let's talk about this graph first. We will define some example first and then after we will realize that what is the equation and how it is going to be implemented. तो चलो हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल करने के लिए द फर्स्ट ग्राफ दैट यू हैव टू ड्रॉ, जो ग्राफ आपको फर्स्ट ड्रॉ करना है, एंड दैट इज y = x + 3. हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ? दिस x is input, so this is for the input. Don't worry if someone finds it is easy, टेंशन मत लो, ये फिर थोड़ा ही जल्दी डिफिकल्ट हो जाएगा. When you put x as an input, so x is equal to -2. When you compute x is equal to -2, you will find y is equal to 1. When you compute x is equal to what? -1, you can find that y is equal to 2. When you find y is equal to 0, x is equal to 0, we can find x is equal to 3, 1, 4 and like this. You can only compute 2 values as well. तो आप 2 values भी implement करते हो तो भी आपको equation जो है आपको मिल जाएगा. So now when you draw this graph, you will find like this. So you have to compute the values. When x is equal to -2, जब x -2 है and y is equal to 1, तो ये सारी values हमने implement करना सीखा. We'll find a graph like this. We have already did that, so that's why we are not explaining too much. Otherwise, it will waste a bit time.
we have already did that, so हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. So now come for directly come for the application. इधर देखते हैं, ध्यान देंगे आप. देखो इधर ये वाला जो पॉइंट है जहां पे y इंटरसेप्ट है, द वैल्यू इज 3. y इंटरसेप्ट जो आपको दिख रहा है, बच्चे लोग यहाँ पे देखिएगा, जब ये ग्राफ आप बनाते हो इनपुट डालकर और आउटपुट डालकर, इसके देखो यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकता है, या तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन से सिखा दूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले हम एक प्रैक्टिकल टाइप का कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट रख के, फिर हम अब क्वेश्चन पे जाते हैं. तो आप जब देखोगे ये जो y इंटरसेप्ट है, द वैल्यू इज 3, यहाँ पे क्लियरली आपको विजुअलाइज हो रहा होगा ये y इंटरसेप्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्लोप, जब आप इसके स्लोप के बारे में बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्लोप, सो दिस वैल्यू, जरा लुक एट हियर गाइस, ये ट्रायंगल में यहाँ पे जो वैल्यू है दिस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 3, and now this is 3. So in this triangle you will find that this tan theta. So what is the tan theta guys? यहाँ पे tan theta की वैल्यू कितनी होगी? What is tan theta? What is tan theta? This is 4/4. तो 4/4 हो गया, तो tan theta becomes 1. Okay? यहाँ पे tan theta 1 हो गया, then you can say that m is positive. What is the meaning of m is positive? Theta is less than 90 degree. आप यहाँ पे theta less than 90 degree निकाल भी रहे हो, और यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है. ओके, सो नाउ एनालाइज द ग्राफ y इज इक्वल टू, आपने क्या एनालाइज कर रहे हो, x प्लस 3, राइट. तो आप जब 3 को देखोगे तो यहाँ पे क्लियर एक टर्म्स दिख रहेगा कि ये जो है वो है y इंटरसेप्ट. मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करो एज अ फॉर्मूला, मैं चाहता हूं कि आप इसको इनपुट और आउटपुट रख के वैल्यू चेक करो ग्राफ में और फिर एक्सेप्ट करो. और ये वाली अगर मैं बोलूं, यहाँ पर मैंने बताया आपको, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर जो वैल्यू है दिस इज 1, बिकॉज 1 into x जो होगा 1 होता है, सो m इज इक्वल टू 1, एंड यू नो दैट व्हाट इज 1, दिस इज tan 45 डिग्री. तो आप देखो जरा यहाँ पे ये m स्लोप हो गया कि नहीं हो गया. तो इस इक्वेशन में आपने देखा कि यहाँ पे जो 2 है वो क्या है आपका, y इज इक्वल टू x प्लस 3 जहाँ दिया हुआ है, दिस इज y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1. सो होप सो विल गेट इट, like in a equation it has given, so किस टर्म को कैसे हमें डिफाइन करना है और इस टर्म का बेसिक मीनिंग क्या है. Don't worry, come to the application, we learn first that how to accept the things. Okay, so आपको ये लिखना है या फिर मैं आगे चलूं, आपको ये इजी लगा? मेरे हिसाब से अगर आप बताएंगे तो आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें, इट्स वेरी इजी. इनपुट और आउटपुट कंप्यूट कर करके हमने बहुत सारी वैल्यूज निकाला है ऑलरेडी. तो फिर से अगर आप निकालते हैं, समवेयर हम अपने माइंड को स्लो कर रहे हैं और हमारा आउटपुट उस तरह से आएगा नहीं. हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और फिर हम फाइनल इक्वेशन पे आते हैं. नाउ चैम्प्स, लुक एट हियर, सपोज दिस इज द सेकंड एग्जांपल, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, लुक एट हियर. आप यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. तो चलो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. Go for the second example. So चलो अब हम इस सेकंड एग्जांपल पे आते हैं एंड वी ड्रॉ सम ग्राफ. अभी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सो बच्चा लोग, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको जो टर्म आता है या जिस तरीके से आप सीखते हो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और इजीएस्ट पार्ट है, एंड दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट, करेक्ट. सो व्हेन यू लुक एट द ग्राफ यू विल फाइंड, तो जब भी आप ग्राफ पे देखोगे, you will find that this y is equal to minus x plus 3. So if we talk about, this is the input and this becomes output. सबसे easiest तरीका आपको सर ने सिखाया था कि इधर आप input डालने का और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आता है. अभी यही सीख रहे हैं, बाद में इसको बहुत स्टैंडर्ड टर्म में सीख लेंगे. So when you plot input and output and you compute the value of x, you will get the different values of y. And when you plot it in the graph, you will find this type of a straight line. So in this straight line, what you are going to visualize? इस straight line में आप क्या visualize करने वाले हो, जरा ध्यान देते हैं.
इस स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द y इंटरसेप्ट. इसको y इंटरसेप्ट इसलिए बोला गया कि बिकॉज इट कट एट y एक्सिस एट दैट पॉइंट. दिस इज द y इंटरसेप्ट. So you can see that this y intercept is 3. You can say that this y intercept is 3. बिल्कुल. When you realize it in a question, the y intercept is 3, and now you have to realize or you have to find that what is the value of, then what is the value of tan theta. चलो यहाँ ध्यान देते हैं. Champs, look at here. So इधर ध्यान देंगे. इसमें थोड़ा सा ये रहा tan theta. Now look at here. जरा इसको ध्यान देंगे आप. ओके. अच्छा, इसमें एक और टर्म बता दूं आपको. बताओ. सुनो, थोड़ा मैं स्टैंडर्ड तरीके से बताता हूँ. लुक एट हियर. ये नेगेटिव क्यों हुआ वो बता देता हूँ मैं, तो फिर बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगी. ये इजी है, आई नो, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो मैं आपको डिफाइन करके देता हूँ. मस्त वाला टर्म है वो. ध्यान देते हैं इसको जरा. इसको ना ये ध्यान से सीखना. सर ये तुमने ध्यान नहीं दिया होगा. ये क्यों? क्योंकि देखो, अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा. जैसे देखो, मैं पहले कंफ्यूज करता हूँ तुमको, फिर उसके बाद रियलाइज कराता हूँ कि क्या कंफ्यूजन है. जैसे मैं तुमको बोलूँ कि इस ट्रायंगल में अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है, ये वाली ट्रायंगल में, तो ठीक है, यहाँ पर आप y की वैल्यू निकालोगे. सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, और सपोज यहाँ भी x की वैल्यू आपने 3 रखा है. इज इट ओके? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है. तो आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो tan थीटा होगा, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर जो tan थीटा होगा, इसको दो तरीके से मैं समझाता हूँ. ये जो tan थीटा होगा, चैम्प्स, दिस इज 3/3, एंड नाउ दिस बिकम्स 1. बच्चा ऐसा है कि ये जो tan थीटा जो आपने 1 निकाला है ना, आपने इस ट्रायंगल में निकाला है. ध्यान देना, ये 45 डिग्री है. लेकिन दिस इज नॉट द, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्लोप. स्लोप का डेफिनेशन ये होता है, लुक एट हियर, स्लोप का डेफिनेशन ये होता है, द एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो आप यहाँ पे देखोगे, इफ दिस इज 45 डिग्री, नाउ योर स्लोप बिकम्स, दैट इज 135 डिग्री. वाई 125 डिग्री? बिकॉज दिस इज 45. तो आप इसको लिखोगे ना, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास कितना, 135 डिग्री. So that is the reason behind that why the slope is going to be defined as 135 degree. So if we'll say that this is 135 degree, so you can say that theta is greater than 90 degree. So if theta is greater than 90 degree, the slope becomes negative. So m जो होगा वो क्या होगा आपका, negative होगा. So that's why in a equation y is equal to minus x plus 3, you will find that in this equation m is negative. M is negative. Because why m is negative, यहाँ पे दो तरीके से देख लो. The first is the equation is given. According to the equation you can find input and output. Compute किया value को, input और output आ गया. You draw the graph. In the graph it is clearly visualized that with respect to positive x-axis, this theta is greater than 90 degree. It means that slope is negative. That's why the slope is negative. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. So may I expect that you are going to. So may I expect this? Yes, Priyanshu, we have the Mira Road branch, and the branch is in front of old petrol pump on the highway. So tan 135. देखो, like Jeet, you asked about tan 145 degree. Jeet, the tan 145 की जो वैल्यू होती है वो अभी मैं आपको नहीं सिखाया हूँ. अदरवाइज मैं डायरेक्टली बता देता कि यहाँ पे tan 145 की वैल्यू -1 होती है. That's why I am not going to describe it. वो नेक्स्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स के टर्म है उसमें हम सीखेंगे tan 145 की वैल्यू क्या होती है, 135 की वैल्यू क्या होती है. अभी हमने इसको डिस्क्राइब नहीं करा है, इसलिए मैं अभी उस तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओके, कैसे निकाल रही है इसके? बच्चा बात नहीं करेंगे प्लीज. Will you please maintain some silence? Okay, champs. तो चलो हम लोग इसको आगे चलते हैं. इस पे आपने लिख लिया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा, तो हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं. So let's move forward. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और फिर इसमें देखते हैं. अच्छा नहीं, मैंने इसमें बताया था कि आपको ना, will you please maintain, और if you have to talk ना, if you have to talk, just अगर आपको घर पे बात ही करना है तो आप सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट करो. Don't use your freedom negatively. Don't use your freedom negatively. Okay. Okay.
यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिनको आता है वो भी समझ लो और जिनको नहीं आता है वो भी समझ लो, ठीक है? ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ही समझना। नाउ सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, लुक एट हियर, ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये रहा ग्राफ, इससे रिलेटेड ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। जब आप ये जब ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये ध्यान से सुनना, ये क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये बाद में फिजिक्स में इंप्लीमेंट हो जाएगा। आन्या जरा टी बंद कर दो ना। Okay, when we are going to draw this graph, so this is y, this is x, look at here. तो चलो हम इस पे ध्यान देते हैं कि what we are going to define it. देखो जरा क्यों हुआ, जब आप tan थीटा के बारे में बात करते हो ना बच्चा, जब आप tan थीटा के बारे में बात करते हो, स्लोप के बारे में बात करते हो, m इक्वल टू tan थीटा। नाउ इसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था, दिस इज द डेल्टा y बाई डेल्टा x। लुक एट हियर, y इट इज नेगेटिव, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज delta y by delta x. This is output upon input. You all know it, right? So you can say that this is the y final minus y initial. ध्यान से देखो इसको, upon x final minus x initial. ये बात बिल्कुल सही था। इन द लास्ट एग्जाम्पल जो जिस तरीके से मैंने समझाया था, उसमें मैंने इनपुट रखा, आउटपुट रखा, और मैंने ये देखा कि ट्रायंगल में जो वैल्यू आ रही है थीटा की वो है 45 डिग्री। बट वो जो 45 डिग्री है, वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ है। इस कारण से हमने बताया कि नो, इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। द डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज द एंगल मेड बाय, अब यहाँ पे मैंने ये बताया, आप जब ये ट्रायंगल पे आप देख रहे थे, तो ये वाली वैल्यू आपने इस ट्रायंगल में निकाला था ना, ये वाली वैल्यू, तो आपने बताया था कि सर ये 45 डिग्री हो गया। देन आई टोल्ड दैट नो, दिस इज नॉट द स्लोप, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज द एंगल made by the positive x-axis in anti-clockwise. So that's why this is not an angle. So this is the angle. This is the 135 degree. So this 135 is greater than 90. That's why it is negative. So this is how I can define in terms of mathematics. But there is one more practical application for this. हम इसके practical application पे ध्यान देते हैं. And then we are going to define then why it is negative. So ये जरा आप ध्यान देंगे. Okay now. Now look at your champs. जरा ध्यान देना यहाँ पे, सुनेगा। When x is equal to 0, 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 what is the value of y? In this equation, when x is equal to 0, what is the value of y? When x is equal to 0, what is the value of y? So when you compute x is equal to 0, you will find that, so input, so can we say that this is the initial? जरा ध्यान देना इसको। मैं यहाँ पर अगर लिखा x जो इनिशियल इनपुट है वो मैं 0 रखता हूँ, तो y जो इनिशियल आउटपुट आ रहा है बच्चा, so you can find that y output as, so that is 0 plus 3. What is the 0 plus 3? This is plus 3. So you can find that this is the plus 3. सिमिलर ग्राफ को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। When you compute x is equal to plus 3, so suppose x फाइनल जो है तुम्हारा plus 3 आ गया, तो y फाइनल कितना आएगा बच्चा? What is the y final? That is 0, right? y फाइनल 0 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और इस इक्वेशन को यहां पर हम कंप्यूट करते हैं, करेक्ट? तो जब हम इधर कंप्यूट करेंगे, विल फाइंड दैट, आपने बोला कि सर ये जो स्लोप का डेफिनेशन है वो हमने क्या निकाला है, y final minus y initial. तो what is the y final here? It's 0. So you can say that this is the 0 minus, what is the y initial? Y initial is 3. So 0 minus 3 upon, what is the
x final is 3, so that is 3. What is the x initial? X initial is 0, minus 0. So that's why this is minus 3 upon 3. So this is minus 1. अब आपको ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं. You will find there are different perspective of thinking or approaching a question. The first perspective is draw, analyze and compute. The second is, according to the formula, go with the input and output and draw and find the value, and according to this you have to compute. So आप यहाँ पे find करोगे, when you find that m is equal to delta y by delta x. So delta y by delta x, this is the output minus input, change in output upon change in input. So this becomes minus 1. What we have analyzed as the minus 1 here. So this m is equal to minus 1, and this point is the y-intercept because यहाँ पे y-axis intercept होगा. So this is denoted by c. Y-intercept is denoted by c. So ये straight line में, ये जो straight line आपको दिख रहा है, straight line is minus x plus 3. In this straight line, you can find that the slope is minus 1 and intercept is 3. So this is something what we are going to define it. You got the idea? आप सबको समझा बच्चा? Or anyone having the confusion regarding this? सबको समझा ये कि कैसे हम डिफरेंट वे में देखते हैं? देखो सबसे बड़ी बात होती है, भले आपको पता नहीं क्या लग रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है ना, ज्यादातर बच्चों के साथ बेसिक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ मैं. ज्यादातर बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम यह है कि 10th तक उनके जो पढ़ने का जो तरीका होता है, 10th तक उनको जो एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, 10th तक जो एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वो बस टीचर ने एक इक्वेशन बताया है एंड उस इक्वेशन को वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसे आज भी बहुत सारी जगह पे कराई जाती है. ऐसे बच्चों से जेई और नीट कभी नहीं निकलता है जब तक आप उसको खोद के समझोगे नहीं. इक्वेशन से ग्राफ कैसे आया, ग्राफ से स्लोप कैसे आया, स्लोप से फिर क्या आया, तब तक मैं इस पे बोलूंगा क्वेश्चन बना के देखो, फिर आउटपुट इनपुट कैसे रिलेटेड है. देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स जिसको आपको पैरेलली कंसीडर करनी है. ठीक है, अब चलो मैं एक 10th के टीचर की तरह, या मैं एक ऐसे टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ, 10th के टीचर की, या एक ऐसे टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ जो इक्वेशन रटा रहा है. मान लो कि मैंने तुमको इक्वेशन रटना सिखाया, तो अगर मैं इक्वेशन रटना सिखाऊंगा तो क्या सिखाने वाला हूँ मैं, देखो जरा. अगर मैं इक्वेशन रटना सिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, एक्सेप्ट कर लो, रियलाइज मत करो, खुद से फील मत करो, और जब तक फील नहीं करोगे तब तक तो आईआईटी में यार जेई में कैसे क्वेश्चन बना पाओगे. आज तक कोई क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है. ये तो शायद आपने भी सुना होगा कि क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होते हैं. तो रिपीट नहीं होते हैं तो क्या 10th की बुक की तरह है कि वही न्यूमेरिकल है, वही 10 बार सॉल्व कर लिया, 11वीं बार बुक में आएगा, सॉल्व कर लेंगे, आउट ऑफ 100 बाई 100 और घर वाले खुश, ओहो मेरे बच्चे ने 100 में 100 लाया मैथ में. यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे. आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो समझ के चलो कि वो पूछेगा ही नहीं. तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना ज्यादा समझ रहे हो. तो चलिए हम बातों को खत्म करते हैं और आगे चलते हैं. अब मैं सिखाता हूँ. अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ. आपने ये चीजें रियलाइज कर ली. अब मैं यहाँ पे आता हूँ. ये रहा अपना इक्वेशन. ये सारी कंडीशंस को देखने के बाद, रियलाइज करने के बाद, हमने ये रियलाइज किया, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा दिया हुआ था. पहले इक्वेशन दिया है फिर उसने रियलाइजेशन दिया है. मैंने क्या लिया, पहले रियलाइज करो फिर इक्वेशन पे आते हैं. तो फिर जब इक्वेशन पे आया तो हमने देखा कि ओ, एनी इक्वेशन कैन बी रिटन इन लाइक दिस. आप किसी भी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो. इट मींस दैट इफ यू आर राइटिंग अ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब आप किसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है दिस m स्टैंड फॉर स्लोप and this is the intercept. Now you come to realize according to the example. So this is the slope, this is the slope, right, and this is the intercept, the y intercept. तो स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल फंक्शन क्या हो गया, y is equal to mx plus c. So this is the simple function of a straight line, y is equal to mx plus c. Okay, now so if we talk about the slope, इस स्लोप में क्या क्या पढ़ा है. नाउ लुक एट हियर. स्लोप के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है कि सर स्लोप जो होता है वो 0 हो सकता है, करेक्ट.
स्लोप जो होता है सर वो इनफाइनाइट हो सकता है, करेक्ट। स्लोप जो होता है सर वो पॉजिटिव हो सकता है, करेक्ट। स्लोप जो होता है सर वो नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट। ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया। सो नाउ व्हाट्स द आइडिया अबाउट सी? सी इज अ नंबर, राइट? सी इज अ नंबर, सो इट मे बी 0. C is positive, C is negative. Why? Because ये x axis को 0 पे भी intercept करेगा. When it intercepted the x axis at 0, you can say that the straight line passes through the origin. There is the possibility that it will intercept at y जहाँ पे positive हो, and it may possible that ये वहाँ intercept करे जहाँ पे y negative हो. Don't worry about that. ये चीजें बहुत आसान है. I ओके चलो, तो मैं इसमें भी सेटिंग कर रहा हूँ. यस. देखो आपको ओके किड्स, अभी ऐसा है कि नाउ यू कैन मैं बात देखूं. बच्चा हर्षिता, do you think that someone is disturbing? Okay, प्रियांशु, I just आप लोग से एक ये है, आप जो है सिर्फ चैट मेरे साथ ही कर सकते हैं. यू कांट कम्युनिकेट टू अदर्स, ठीक है? इट इज ब्लॉक. आप जैसे जैसे अपने फ्रीडम को गलत यूज करोगे, आपके जो राइट्स हैं वो ब्लॉक करते चला जाएंगे अब, ठीक है? तो सो कैन वी स्टार्ट? अभी तक आपके जो ऑडियो, अभी तक मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया बिकॉज आई वांट ए इंटरेक्टिव सेशन हियर. बट आप में से कुछ बच्चे जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज को कि कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ऑडियो तो मैं नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ये मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेक्ट हो. ओके, सो नाउ वी कम फॉर नेक्स्ट. और दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, भले आपको टीचर देख नहीं रहा, आप इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सीखो. मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हो सकता है तुमको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग लग रहा हो कि सर इसको कैसे पता नहीं कितनी सारी चीजें एक्सप्लेन करें, बट बिलीव मी यही तरीका होता है पढ़ने का. ये y = mx + c रटने का तरीका नहीं होता है, आपको हर एंगल से डिस्क्राइब करना होता है. ओके ना? सो y = mx + c, व्हेन वी टॉक अबाउट y = mx + c, तो आपको y के साथ पॉसिबिलिटी क्या क्या आती है? पॉसिबिलिटी क्या आती है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो m हो सकता है 0 हो सकता है, m जो होता है इनफाइनाइट हो सकता है, m जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, और m आपका नेगेटिव हो सकता है. सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्लोप. व्हेन यू टॉक अबाउट c इज द इंटरसेप्ट. c 0 हो सकता है. c 0, it means that intercept is at origin. It means that the straight line passes through the origin. When you say that the c is infinite, so c is positive, so intercept is positive and intercept is negative. So before going to these things, let's define some question at y = mx + c. पहले हम कुछ क्वेश्चन डिफाइन कर लेंगे और फिर इसके बाद है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे. और मैं आपको बताऊं, then I will teach you that how to draw a graph. Then I will teach you that how to draw a graph within 5 seconds. इसके बाद जब आपका सभी खत्म हो जाएगा, at the end of the straight line, पर्पस क्या है, हमें क्यों सिखाया जा रहा है, ये बता दो. सबसे बड़ी बात ये. यस सर, जब हम लोग m को एज अ 0 हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आंसर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे. चलो, एक आपने पूछ दिया तो मैं एक m0 लेके करता हूँ मैं. चलो m0 लेके कर लेता हूँ. वैसे आप इसके लिए थोड़ा वेट कर सकते थे क्योंकि इसके बाद वही था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ. सबसे सॉरी सर, थैंक यू. नो इशू बच्चा, मैं अभी आपने बताया ना, मैं बता देता हूँ. देखो, मान लो कि m आपने 0 ले लिया. अच्छा, m0 ले लिया आपने. एक एक केस कंसीडर करके चलते हैं, एक केस पे आपको समझा देता हूँ और फिर आगे लेके चलता हूँ. सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मैंने m को 0 ले लिया. So when you get m is equal to 0, there are 3 possibilities with c. The first possibility with the c is c may be 0, the c may be positive, and the c may be negative. ये 3 possibility आ रही है अपने पास, राइट ना? m0 करके 3 possibility हम ले सकते हैं. मैं इसलिए बोला कि हमारा पर्पस ये है कि मेरे को ग्राफ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैं बात बता रहा था. हमारा मेन टारगेट ये है ये स्ट्रेट लाइन पढ़ने का कि आपको स्ट्रेट लाइन जो है विद इन 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में नोट डाउन होना चाहिए. क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट, अगर कोई बच्चा नीट के लिए तैयारी करे, ही और सी कैन गेट ओनली 45 सेकंड्स. तो यहाँ पर जो आपको सिखाने का तरीका है, इनपुट और आउटपुट इस तरह से करके सिखाया जा रहा है बिकॉज आपको 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट कर देना है, बाकी टाइम आपको फिजिक्स सॉल्व करना है, ठीक है? अदरवाइज बच्चों को टाइमिंग इशू हमेशा आता है. चलो खैर, हम इस पे बात कर लेते हैं. सो दैट इज m = 0. पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझने वाला है.
तो m is equal to 0, it means that you are talking about tan theta is equal to 0. अच्छा बच्चा, अगर tan theta अपना 0 हो गया, tan theta अगर हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया. अच्छा ये थीटा क्या होता है, 0 डिग्री. दिस इज द एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. आप बोल रहे हो एक्स एक्सिस से ये एंगल 0 होगा. ये तभी हो सकता है जब लाइन पैरेलल हो, अभी हमने पढ़ा भी था, राइट. ये पैरेलल लाइन पास कर रहा है यहाँ से, देखो तो जरा ये वाला, ये सी जो क्या है आपका पॉजिटिव है यहाँ पे. तब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, लिखोगे y इज इक्वल टू सी. y इज इक्वल टू सी को आप इसको ऐसे तरीके से समझा सकते हो, y इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस सी. कैन वी राइट दिस, क्योंकि ये तो फिर 0 हो गया. तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो स्लोप का, दिस स्लोप बिकम्स, अब ये पार्ट देखेंगे जरा इसका, नाउ दिस स्लोप बिकम्स m इज इक्वल टू 0. तब आप इक्वेशन क्या लिखते हो, आप इक्वेशन लिखते हो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू 2 लिखा तुमने तो ये पॉजिटिव लिख दिया तुमने, y इज इक्वल टू -2 लिखा तो ये नेगेटिव लिख दिया. अच्छा y इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y इज इक्वल टू 0? If we have written that y is equal to 0, it means that we are talking about x-axis. If y is equal to 0, yes, we are talking about x-axis. If y is equal to 0, so how to find the value? Okay, now आपको समझा आपने बच्चा लोग कैसे है? Okay, मैं चेकआउट कर लेता हूँ. देखो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इसमें से कुछ बच्चों का मुझे कंप्लेन आ रहा है कि सर ये हो रहा है. आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी सारी चीजें म्यूट कर दी गई है. आप बच्चे सिर्फ मेरे से ही चैट कर सकते हैं, बाकी और किसी से चैट कर ही नहीं सकते हैं. और दूसरी चीज, जो भी बच्चे थोड़े शैतान हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास में शायद टीचर थोड़ा इग्नोर भी कर दे, लेकिन आप ये जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है इन सबकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है. और रिकॉर्डिंग चलने का मतलब है ये सारी चीजें ट्रैक होती है, आपका यूजर नेम, आपका अटेंडेंस, आपने कितना देर अटेंड किया है, किसने क्या लिखा, किसने कौन सा मैसेज किया, वो सारी चीजें. इवन दैट आपके आईपी एड्रेस भी ट्रैक होते हैं इसमें. देख लो जूम का क्या काम है. तो यहाँ पर शैतानी करोगे तो अगर कोई चाहे तो आराम से पकड़ सकता है, तो यहाँ मुश्किल होता है. तो आप दूसरे किसी को परेशान ना करें, रिक्वेस्ट. चैंप्स, ओके, चले आगे हम लोग. तो चलो हमने एक इक्वेशन सीखा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. जरा हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन को करते हैं इस पे. ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. देखो वो पढ़ाने के बाद इसने पढ़ा, मैं थोड़ा सा फ्लो को चेंज किया, थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. क्या जाता है न्यूमेरिकल करने में. चलो जी चैंप्स, न्यूमेरिकल चलो सॉल्व करो तो जरा. क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चा. हाउ टू फाइंड इट्स वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें. देखो ना आदित्य, ये जो क्वेश्चन है इसके बाद आप मुझे खुद बता दोगे कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें. इज इट ओके? थोड़ा सा वेट कर ले. वेरी गुड, बच्चे ने बहुत शानदार सा रिप्लाई किया. जरा देखो तो जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. अरे वाह, तन्मय, एवरीवन, सबने अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं. ग्रेट गाइस. नाउ लुक एट हियर. आदित्य आप जरा देख लेंगे क्या है इसमें, आपको तुरंत समझ में आने वाला है. जरा ध्यान दो. यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2. इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट m इज इक्वल टू 2 and intercept is phi. This is phi, and it means that this is a c, right? You know the equation y is equal to mx plus c. हेला, इसे इजी क्वेश्चन होता है, बताओ यार. दैट इज द इक्वेशन. यहां से क्या क्या एनालाइज कर सकते हो. यहां से 1 मिनट, यहां तो ठीक है, यहां तो हमने कर लिया. यहां से क्या एनालाइज करोगे, यहां से हम ये एनालाइज करते हैं. ये सब सीखते चलो, आगे ये जरूरत होगा. ये जो m है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा. ये इसलिए एनालाइज करो क्योंकि 5 सेकंड के लिए सब जरूरी होता है. ये c जो है इंटरसेप्ट है, और ये पॉजिटिव है, मतलब ये y एक्सिस पे पॉजिटिव पार्ट पे स्ट्राइक करेगा या पॉजिटिव पार्ट पे कट करेगा. 5 सेकंड के लिए जरूरी है ये सब चीजें दिमाग में बार बार रिवाइज करना, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ. चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत आसान लगा होगा.
किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। आदित्य, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपके क्वेश्चन का जवाब एक दो क्वेश्चन में आपको खुद ही मिल जाएगा, और आप मुझसे फिर बोलोगे कि सर मेरे को समझा कि सी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है स्ट्रेट लाइन में। डोंट वरी अबाउट दैट आदित्य। तो चलो हम आगे चलते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन। आदित्य, आपके कुछ सवालों का जवाब यहाँ पे है। ये जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जरा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ इक्वेशन 2x minus 3y minus 4 is equal to 0, तो आपको सबसे पहले तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, राइट? सबसे पहले अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है गाइस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c। इसमें लिखना है, मतलब ये हुआ कि आपके जो इक्वेशन दे रखी गई है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी रखी गई है। उस इक्वेशन में आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना यही है, ये जो y वाले टर्म को, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो आपको दे रखी गई है, इसको ऐसे लिख लो। मतलब मुझे y को सेपरेट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस 3y, या y को उधर लेके चले जाओ, ये वाला जो बच टर्म है ये वाला, इसको पूरा उधर लेके चले जाओ। यू कैन से दैट 2x minus 4 is equal to 3y. So that's why you can find y is equal to 2 by 3x minus 4 by 3. Is it correct? भाई इतने बढ़िया से जवाब देते हो ना। 4 कैसे होगा? 4 by 3 होगा। आदित्य, आपने जो सवाल मुझसे पूछा और आपको खुद ही समझ में आ गया। आदित्य, यू गॉट द रिप्लाई, आपको समझ में आया? गॉट द आंसर व्हाट यू आस्क्ड? हाँ, तन्मय, इसको फिजिक्स में कैसे करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। पहले मैं 5 सेकंड में बनाना सिखा दूंगा, फिर मैं आपको इससे क्वेश्चन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे करते हैं। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ओके तन्मय, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हम थोड़े बेसिक्स पढ़ेंगे, उस बेसिक्स क्वेश्चन को हम फिजिक्स में करेंगे और फिर आप जब उस फिजिक्स के क्वेश्चन को फिर 5 सेकंड में कर लेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग। यस सर, हम लोग इसको -3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4 भी लिखेंगे तो आंसर डिफर करेगा। कैसे बच्चा? क्या डिफर करेगा? जरा फिर से रिपीट करो। अगर हम लोग ने मतलब 2x और -4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए जी और फिर सॉल्व किया तो आंसर डिफर करेगा। बच्चा, आपको फिर माइनस भी तो उधर लेके जाना है, y के साथ -3 है ना, तो आप डिवीजन -3 से करो, 3 से मत करो, तो आंसर वही आएगा, डिफर नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। ओके बच्चा। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा नहीं, जरा शायद आपने ये समझा नहीं है एक बात को। क्या करना है यहाँ पे? ये जो स्लोप है चैम्प्स, ये स्लोप की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3, जो कि हो गई पॉजिटिव, करेक्ट। और ये जो c की वैल्यू हो गई, वो इंटरसेप्ट जो हो गया वो -4/3 आ गया, जो हो गया नेगेटिव। नेगेटिव देखते ही दिमाग में ये आ गया एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे कट करेगा, और पॉजिटिव देखते समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 90 डिग्री है। ये जो है ये इक्वेशन है और इसलिए हमने इसको पढ़ा था। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? ओके सर, सो नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। तो चलो हम आगे चलते हैं जरा। अब ये देखना, ये भी मार्केट में ना बहुत आसान सा, ये मार्केट में बहुत सस्ता बिकेगा। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। P is 2/3 is a point in a line
y is equal to 3x plus c. y is equal to 3x plus c. Now let's solve. देखो सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। ये होता है अप्रोच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने जवाब दे दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो या थोड़ा सा चीजों को ध्यान दो, भले मैं जो बोल रहा हूँ ना दिमाग में नोट डाउन करते चलना, बाद में बहुत काम आएगा। बाद में मत बोलना सर की पता नहीं क्या था। देखो सुनेगा, बात सुनेगा बच्चा। p इज इक्वल टू दे रखी है अपने को 2,3, ये होता है x और इस x को बोलते हैं इनपुट। बस ऐसे बता रहा हूं मैं, ताकि बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में आ जाए। ये होता है y और y को अपन लोग बोलते हैं आउटपुट। मैं फिर से रिपीट करो, मेरा काम आंसर बताना नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत फास्ट आंसर निकाल लिए हो। तो चलो, ये जो 2 है वो x है और ये जो 3 है वो y है। अब आप अपना काम कर सकते हो जो आता है। मेरा बस ये टारगेट था कि ये इनपुट है, ये x है, ये आउटपुट है, ताकि मेरे को बाद में इसको टाइम बना देना है, इसको करंट बना देना है, इसको वोल्टेज बना देना है, इसको प्रेशर बना देना है, इसको हाइट बना देना है, इसको बहुत सारी चीजें बनानी है, इसको चार्ज बना देना है। ये जो x है टाइम हो जाएगा, फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर करंट आ जाएगा, फिर पोटेंशियल हो जाएगी, फिर करंट आ जाएगा, फिर हाइट हो जाएगा, फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगी और फिर टाइम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर टाइम आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर वेलोसिटी आ जाएगा। ओ से बट सबका आंसर आएगा 5 सेकंड में। चलो देखते हैं। अच्छा 5 सेकंड मतलब मैगी वाला फंडा नहीं दिख रहा है। ओके चलो, नाउ लुक एट हियर। सो दिस इज y is equal to 3, so this put is at 3, that is 3 into 2। आ गया होगा सबको? कितना आसान है, ठीक है। इतना आसान भी कोई क्वेश्चन देता है? इतनी बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास के जरिए इतना इजी पढ़ा के सरेआम तुम लोग की बेइज्जती कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन और आप जो है इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, बढ़िया। पहली बार देखा इतने आसान क्वेश्चन पे बेइज्जती, और इस बेइज्जती को एंजॉय करते हुए लोग। चलिए, आफ्टर ऑल ये जोक था। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। Solve this question please. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको लिखो एंड यू फाइंड द स्लोप। Define it in the slope intercept form and find the slope. Define it in the slope intercept form and find the slope. चलो, अपन लोग के पास इक्वेशन है दिस वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू mx प्लस c। ज्यादातर बच्चों ने कर लिया यार, बढ़िया है फिर तो। और क्या चाहिए, लिख लो यहाँ पे x by 4 प्लस y by 3 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो। y by 3 is 2 minus x by 4, so that's why y को आप लिखोगे that is minus 3 by 4 x plus 6। ये आ गया अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो आ रहा है ये देखो, ये स्लोप है m जो कि नेगेटिव है। इसको देख के ये समझ में आ रहा होगा, इसको देख के ये समझ में आ रहा होगा, इसको देख के ये समझ में आ रहा होगा थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और ये जो देखो ये पॉजिटिव है, ये c जो है वो पॉजिटिव है, मतलब y को प्लस 6 पे वो इंटरसेप्ट करेगा, है ना? है ना आसान? आज मैं सिर्फ इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, कल
इससे रिलेटेड फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन को कंक्लूड करके फिर दूसरे तरह का कर्व सर्कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर पैराबोला पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिगो पढ़ाऊंगा, फिर सबको फिजिक्स में बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स में तुम धुरंधर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो बच्चों को पूरा 12th बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है यार मैथ को फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अजीब, मतलब मैं तो सबसे ज्यादा देखता हूँ, पता है तुमको, मैं तो सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस किया है मैंने अभी के टाइम में, बच्चे को ये समझ में नहीं आता सर डिफरेंशिएट कब करने का और इंटीग्रेट करने का, क्योंकि इतना इजी होता है। चलो नाउ कम टू द टॉपिक। सवाल आपके सामने, क्वेश्चन है, इफ A1 lies on a graph 3x minus 2y plus 4, then what is the value of A? A1, this is x, this is input, this is output, रख लो आप 3x, that is 3 into A minus 2 into 1 plus 4 is equal to 0. That's why A is 2 by 3 minus 2 by 3. करेक्ट ना? और क्या चाहिए? हो गया, बात खत्म, आसान सा था। इनपुट है, आउटपुट है, x है, y है, चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन के और फॉर्मेट को। ओके, ये वाला जरा ध्यान से देना और सॉल्व कर लो। बोल रहा राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखो ग्राफ से इक्वेशन निकालना अपन लोग को। अभी तक इक्वेशन से ग्राफ बना रहे थे, अभी तक हमने इक्वेशन से ग्राफ बना रहे थे, अब हमें ग्राफ से इक्वेशन बनाने हैं। चलो ये भी देख लेते हैं कैसे ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनता है। राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब आपको इक्वेशन जो लिखनी है y इज इक्वल टू लिखनी है mx प्लस सी। यहां पर देखो ये क्या है, c कितना है 4, m जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। m कितना है यहाँ पे 4 और 2। व्हाट इज tan थीटा इन दिस ट्रायंगल? व्हाट इज tan थीटा चैम्प्स? इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज tan थीटा? 1 अच्छा 2 दिख रहा है मेरे को। -2 कैसे होगा रे? ये देख, ये लेस देन 90 है, देखना, दैट इज 4/2। बच्चा ये देख, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हो, ये 90 से बड़ा है कि छोटा है? बता दो। छोटा है, तो अगर इट इज लेस देन 90, ऑब्वियस बात है, देन tan थीटा बिकम्स पॉजिटिव, सो m इज पॉजिटिव, बट ऑब्वियस, सो m इज +2, करेक्ट ना? So that's y is equal to 2x and the intercept is 4. Why minus again? You were saying minus. I don't know. So 4. Okay, बच्चा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, in this graph, देख रहा है somebody. In this graph, you have to find the equation of a straight line in the slope intercept form. In the slope intercept form, what is required? For the slope intercept form, the required thing is, 1 minute. In the slope intercept form, the required thing is, you have to find m and you have to find c. Finding c is very easy. C is y intercept, so that's why y intercept is +4. It is given. So c के बदले यहाँ पे लिख लो +4. और but we have to think about m. So कहाँ से m find करें? So you know that m is equal to tan theta. So ये tan theta बन कहाँ पे रहा है? In this triangle ये tan theta बन रहा है। देखो ये वाली ट्रायंगल में tan theta बन रहा है, ठीक है? तो ये ट्रायंगल में ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ये 2 हो गया। So now I can find out what is tan theta. Tan theta is 4/2. So that becomes 2. So sometime if you confuse it that it may be positive +2 या -2, इनपुट आउटपुट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो जाएगा तुमको। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल बन रहा है ना यार, ये वाली एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज,
स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनती है. सो दिस इज थीटा बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. You can find that theta is less than 90 degree if theta is less than 90 degree, but obviously tan theta is positive, so m is equal to +2. Now the equation becomes y is equal to 2x plus 4. Hope you will all get the idea. कुछ आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. Yes sir, yes sir. अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर उसे फिजिक्स बनाएंगे और फिर फिजिक्स को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे. मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में फिजिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फिर थोड़े टाइम पे आपको ये दिखेगा, जब बाकी आपके दोस्त 10 पेपर पे सॉल्व कर रहे होंगे, आप उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो. ठीक है. मॉनसून आ गया है, घर के अंदर ही एंजॉय कीजिए, बाहर मत निकलिए. मीरा रोड का कल का केस तो सबने देखा होगा, देखा ना सबने केस मीरा रोड का? हाँ सर, हमारे इधर इट्स अलार्मिंग. ओके, अब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू. बाय सर. बाय बच्चे. बाय सर. बाय.